سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلک، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علم دین حاصل کرتے کرتے مجھے خود نہیں پتہ لگتا، درود شریف پڑھنے لگتا ہوں اور جب یاد آ جاتا ہے تو اکثر رک جاتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یعنی اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے، جی اب تو جب شرعی مسائل بیان ہو رہے ہوں تو اس وقت چپ چاپ سننا یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے، جی چپ چاپ سنیں۔ اب بے اختیار درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی دفعہ تو لگے گی نہیں اس پر۔ الحمدللہ، جب میرے اکثر کبھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے یا کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو کبھی کلمہ مبارک یا کبھی درود پاک خود ہی جاری ہو جاتا ہے زبان پہ۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغفرت کی دعا فرما دیں بنا حساب کر۔ اس کے شکرانے میں 12 ماہ دے دینا چاہیے، داڑھی بھی بڑھا لینی چاہیے، شکرانے میں امامہ شریف کا تاج بھی سجا لینا چاہیے۔ لوگ ہائے ہو امی ابو کرتے ہیں اور آپ کو درود شریف اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر جاری فرماتا ہے، تو شکرانے میں تو جو دیں وہ کم ہے۔ انشاءاللہ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لوں گا انشاءاللہ۔ باپا پڑھتا ہوں مگر ناغا ہو اور گئی ہے، پکا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اور مدنی قافلوں کا کیا ہوا؟ باپا انشاءاللہ جاؤں گا، ایک دفعہ گیا ہوں ابھی تک ایک زندگی میں مدنی قافلہ جی۔ ایسا نہیں کروں گا۔ اب کوئی دے دو، تاریخ دے دو نا۔ انشاءاللہ اس ماہ یا اس سے اگلے ماہ انشاءاللہ عز و جل، 1 مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں، انشاءاللہ یا 10 دن کا کوشش کروں گا وہ بھی انشاءاللہ کوشش عز- کریں گے۔ نہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے حکم سے بنا حساب کتاب کی مغفرت ہوا۔ آمین، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں خاردر کراچی سے تشریف لایا ہوں، کیا شان ہے، حاضر ہوا ہوں، اور میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی لطف ہے۔ میرا نام محمد حذیفہ رضا اتاری قادری ہے۔ محمد حذیفہ رضا اتاری قادری، حذیفہ، جی۔ حذیفہ۔ میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ جب پہلے نیکی کی دعوت دینے جاتے تھے تو اب کچھ لوگ آپ کو تکالیف دیتے تھے، اس موضوع پہ کوئی ہمارے کو ایک واقعہ سنا دیں، کیونکہ ہمارے کو صبر نہیں ہوتا، جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے بھی میرا چونکہ مدنی حلیہ، ان مانو کہ داڑھی جب سے میری نکلی میں نے رکھ لی، اور یعنی کہ اب مدنی ماحول بولتے ہیں ہم، دینی ماحول، دینی سوچ تو بہت شروع سے سمجھو الحمدللہ عطا ہوئی۔ تو چونکہ داڑھی تھی میری، داڑھی ان دنوں عام طور پہ رکھتے نہیں تھے لوگ، بڑا بوڑھا رکھ لے۔ ہمارے معاشرے میں داڑھی نہیں تھی،
इतनी नहीं थी उन दिनों जितनी और मेरे अतराफ में भी नहीं थी, हमारे खानदान में भी नहीं थी कोई। तो यूं मतलब मुल्ला होए मुल्ला वगैरह, कभी कुछ पपती कस दी। एक बार मैं जा रहा था, एक पत्थर आया मेरी पिंडली पे लगा। मैंने देखा तो कुछ नौजवान चारपाई पर बैठे थे, हंस रहे थे। मैं लड़ूंगा तो ये बात मारेंगे मेरे को। मुल्ला जो था मैं, ये नहीं मुल्ला या मौलवी या दाढ़ी वाला होना एक अजीब, लेकिन मेरा जज्बा भी अजीब था। वो जफा करते रहे, हाँ? वो जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे। तो कोई सताए या कुछ भी करे, अपना जज्बा तो बढ़ना चाहिए। मेरी मुखालफतें यूं तो बहुत हुई हैं, और आम तौर पे मैंने जो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि मदनी कामों में, दावत इस्लामी कामों में जब से मैं आया तो मुखालफतें तो हुई हैं, लेकिन मेरे को सर याद पड़ता कि ये फीलिंग्स मेरी कि मुखालफत जितनी हो इतना जज्बा बढ़ता मैंने महसूस किया। पीछे हटना ये समझो कि अपनी डिक्शनरी में नहीं। और दावत इस्लामी जब से शुरू हुई, एक सेकंड के लिए भी दावत इस्लामी पीछे नहीं हटी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम बढ़ता चला गया। हमने गुलजार हबीब में मुख्तसर सा इज्तिमा किया था, पहले के हिसाब से वो मुख्तसर था, जेर तामीर थी अव्वलीन मदनी मरकज। फिर उस दिन के बाद समझो आज तक हमारा हफ्तावार इज्तिमा बढ़ता ही चला गया। हाँ, कभी कर्फ्यू हो गए, कोई हंगामे हो गए, हालात खराब हो गए, जोरदार बारिशें, तूफान आ गए, इसमें कमी बेशी होना वो एक अलग, एक ज़ाहिर का हादसाती तौर पर है। वरना मदनी कामों की वजह से इज्तिमा का पीछे चला जाना, कम हो जाना, ऐसा कोई याद नहीं पड़ता मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया, और आज बढ़ते बढ़ते बाबुल मदीना में 12 इज्तिमा हो गए हफ्तावार। अल्लाह की आपका फैज़ान है ये, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम। और एक सहरा मदीना का 12वां, नूरियाबाद का 13वां, यूं 13 इज्तिमा है। 12 जमा 1 12 जमा 1। ये जो बात चली अभी नेकी की दावत का, आपसे तस्करा किया, आज ये हमारे बाबुल मदीना के कोरंगी लांडी से भी आए हुए हैं। तो उमूमन अब ये देखा जाता है कि बाद औक़ात जब किसी इस्लामी भाई को, जैसे न्यू कराची वाले हैं, उनको कहा जाए कि भाई सुरजानी टाउन नई आबादी हो रही है, इसी के साथ गड्डाब पूरा एक आबाद हो रहा है शहर ही, तो बाद औक़ात हमारे इस्लामी भाइयों का ये जज्बा कैसे हम बढ़ाएं कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके में भी जाएं। जैसे आपने फरमाया था कि शहीद मस्जिद से आप पहला मदनी काफिला मलीर लेकर गए, तो वो मलीर उस टाइम कितना सफ़र और कैसे? मदनी काफिला और कोई भी इस्तिलाह नहीं थी। मुझे सदर शरिया के शहजादे मौलाना अमजद अली बहार शरीयत वाले, इनके बड़े बेटे थे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री, शेखुल हदीस थे, बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने मुझे दावत दी। तुम जब दावत इस्लामी बिल्कुल यानी कि बन गई ना, जैसे बोला तुम मेरी मस्जिद में आकर बयान करो, तुम्हारे मेहमान वहाँ बहुत हैं, और इस तरह का जो भी, अब सारी बात तो यूं हम ढूंढते हुए मलीर टंकी या पता नहीं खोखरा पार, मलीर खोखरा पार, मलीर टंकी रास्ते में आता है लेकिन खोखरा पार। हाँ, तो वहाँ हम ढूंढते हुए पहुंचे थे। इनकी बड़ी मस्जिद थी। तो पहले तो इन्होंने दरसे हदीस दिया जो बड़ा मुतासिर कुन था। इनका दरसे हदीस, वो मकतूब जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीगर ममालिक रवाना किए थे इस्लाम की तबलीग के लिए, तो इसमें से किसी मकतूब पर इन्होंने दर्स दिया, और इनको पूरा मकतूब ज़बानी याद था। अरबी में वो मकतूब इन्होंने पढ़ा, बड़ा इल्मी दर्स दिया। इसके बाद इन्होंने मेरा ऐलान किया कि ये बयान करेंगे। गैदरिंग भी थी, मतलब वाजबी, उस माइक वगैरह नहीं, वैसे मुझे याद नहीं है माइक था या नहीं, तो गैदरिंग थी मस्जिद के सहन में, ये तरकीब बनी थी और मैंने बयान किया। बयान करने के बाद कोई बाकायदा तंजीमी तरकीब तो उस वक्त थी भी नहीं ना, वहाँ हम किसी को जानते थे। ये हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुलाया था, तो हम चले गए थे, और किसी को जान पहचान वाकई किसी से भी नहीं थी। लोग इनसे मिलते थे, दस्तपोसी करते थे, हम भी भीड़ में लग कर दस्तपोसी करके मुलाकात करके हम गए। अब क्या करें,
वो पूछते पूछते बस स्टॉप पर आए और घर वेली हो गए। तो यूं मतलब ये हमारी शुरुआत थी, यानी ये दिल में हमारे दिमाग में ये भूत नहीं था उस वक्त, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि यार हमारे लिए गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी तक लोग पहुंचाएं, खाना खिलाएं, कुछ लिफाफा मिलना चाहिए, तरकीब होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इस तरह के भूतों का बसेरा दिमाग में नहीं था। मैं तो एक चुटकुले के तौर पर इस तरह की यादें बयान करता हूँ और उसमें भी लुत्फानंदोज होता हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हुई और मैं इनके खिलाफ हो गया कि यार मैं इतनी दूर से हम लोग आए, हमको किराया तो क्या, हमको ये पानी को नहीं पूछा क्या पानी पिएंगे, वाकई कुछ भी नहीं, हमने मुलाकात की, हम चल दिए। लेकिन ये ज़हन ही नहीं था ना कि हमको नजराने मिले, हमारे लिए गाड़ियां आए और एहतमाम से हमारा खिताब हो, तो मैं दावत इस्लामी का काम कर चुका होता, कोई और कर जाता। ये तरकीब ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर बसों में बरसों तक हम जाते रहे, समझो कभी मुर्गे बनकर भी सफ़र किया है, टिफ़िन बॉक्स घर से लेना, फिर जाकर खाना होटल में से कुछ खरीदना, मिल के हम लोगों का खाना, ये सब हम करते थे। इस तरह अल्लाह की रहमत से इस तरह दावत इस्लामी जो थी ये तरक्की पजीर हुई। एक बार एक तल्ख याद, ये तल्ख याद भी पुरलुत्फ है। उसने कहा कि दावत इस्लामी का अमीर तो फुला को होना चाहिए। मेरा उस वक्त इतना कोई नाम तो था नहीं, नाम में मतलब कोई मेरे कोई इल्मी हैसियत तो ना थी ना है। फुला शख्सियत जो अच्छे मुकर्रिर भी हैं, अच्छा नाम भी है और यूं है अच्छा, तो ये होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, भले इनको बना देते अपने, लेकिन मैंने कहा देखो एक काम करना होगा कि ये टिफ़िन बॉक्स जिस तरह मैं ले जाता हूँ, क्या ये टिफ़िन बॉक्स लेकर बस में सफ़र करेंगे? क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम लोगों को बोले कि अपनी कार लेकर आओ और हम कार में आएंगे, कोई दरवाज़ा खोले हम बैठे और यूँ मतलब ये हमारी खिदमत हो, तो ये सब करने जाएंगे तो काम नहीं हो सकेगा। मैं इस तरह जाता हूँ, क्या इस तरह ये हो सकेगा? बोला क्यों नहीं, ये वो मुश्किल ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है आप बात करें, फिर मैं तो इंशाअल्लाह इनको आगे बढ़ा दूंगा और फिर मैं सबको इनका मुरीद बनाऊंगा, एक एक किसी को नहीं छोड़ूंगा, और यूं अपने दावत इस्लामी का खूब काम करेंगे। ये सब हमारी बातचीत हो गई। फिर आगे क्या हुआ, मेरे को एहसास हो गया कि मुझे ये वाकया शायद बयान करने में रिस्क है। आगे क्या हुआ ना बोला भाई ना, फिर होना क्या था वो बदजन होकर वापस आ गया। का शायद कोई छोटा मोटा अफसर था, अच्छा तुमको याद है, बेचारे को उसको भी दर्द था कि काम बढ़े, कोई सा जोरदार पावरफुल मुकर्रिर और कोई नामवर शख्सियत आए तो अब क्या तुम यार, मेमन तो व्यापारी होते, मेमन लड़का था भी नौजवान में उस वक्त, मैं क्या काम करेगा। तो इस तरह मतलब है कि मैंने कहा मैं ये करता हूँ इसलिए नहीं, मैंने इस अंदाज में फायदा देखा है और काम मेरा शुरू हो चुका है इस अंदाज में। इस अंदाज में वो काम करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह मैं इनको मतलब खूब इनकी पीरी मुरीदी बढ़ाऊंगा और मदीना मदीना हो जाएगा, सब खूब काम करेंगे। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हुआ, नसीब अपना अपना नसीब होता है, जिसके नसीब में हो वो ही करता है। तो अल्लाह करे कि बारगाह खुदावंदी में कबूल भी हो जाए, वरना काम खाली किया उससे क्या होता है, कबूलियत ना हो तो फिर किस काम का काम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम जब नमाज का किसी दूसरे इस्लाम भाई को कहते हैं, जब अजान मिल जाए तो जाते हैं, तो जब फिर कहते हैं कि हम आ रहे हैं आपके पीछे, जब कहते हैं हमारे कपड़े सही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ प्यारा सा। हाय हाय, बस समझा ही सकते हैं, कपड़े नापाक हैं तो तब्दील कर लो। अरे ये नहीं कह सकते जैसे कि बाज लोग ये जवाब दे देते हैं, जहालत है, दिल तो पाक है ना, पढ़ लो नमाज। नहीं, शर्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ही माह में मेरी शादी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी शादी पे मिलाद शरीफ करवाया है। लोगों ने बहुत मुझे वसवसे डाला है, कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा नहीं, पहले सोने की खुशी फिर अपनी खुशी। माशाअल्लाह, मुबारक हो। मुर्शिद आपकी बारगाह में सवाल है, लोग कब्र पर जब पानी डालते हैं तो उसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। अगर
दफन के बाद तो सुन्नत से साबित है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि दफन के बाद पानी डालना। बाकी आपको ज़रूरत है घास पौधा फूल इसके लिए पानी डालते हैं ज़रूरतन, तब भी जायज़ है। मिट्टी बिखर गई है उसको जमाने के लिए डालते हैं, तब भी हरज नहीं है। और खामा लोग जो डालते हैं पानी वैसे ये इसराफ है, ये फजूल है। मैं मोहम्मद नवाज शेरपुर से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बच्चा, इसको मैंने वो इत्काब में बिठाया और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी दुआओं से ये दावत इस्लामी में आ गया और आज इंशाअल्लाह ये 4 बच्चे मेरे दावत इस्लामी में यहाँ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा नेकी करनी तौफीक अता फरमाए। यहाँ ये जो 4 या 3 तो खड़े हैं, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, एक वो बच्चा है। मदनी मुन्ना माशा इस्तकामत की दुआ फरमा अल्लाह दें। इस्तिकामत। ये वालिद साहब हैं, तकरीबन गुज़ारे तैयबा से आपसे वाबस्ता हैं और अभी तक कुछ मुलाकात की तरकीब नहीं हुई, सुभान जब से अल्लाह। वाबस्ता हैं। सुभान अल्लाह। आप अगर करम फरमा दें, महबूब को बेदेखे हुए लौट रहे हैं, उस शाख में क्या रंगे हुए से करनी है। कुछ मुलाकात की अगर तरकीब हो यार जाए, इतना प्यारा शेर सुनाया आपको यार। सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे वफ़ाम सब के लिए, अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल में नाज शरीफ और जुम्मे को दुरूद सलाम होता है तो उसकी हालत में ना आंसू जारी हो जाते हैं, तो दोस्त यार सब मजाक बनाते हैं इसका। और फिर जब गुनाहों से बचने की करता हूँ, उनके दूर होने की करता हूँ, उनकी गिबतों से गालियों से कुलोचों से बचता हूँ, तो इस चीज़ का ही मजाक बनाते हैं और दूर दूर रहते हैं सब, हर बात पे मजाक बनाते हैं। तो इनकी सोबत से गुनाहों से कैसे बचा जाए? कुफले मदीना का नाम सुना है? जी सुना है? कभी लगाने का आपको शरफ हासिल हुआ है? बहुत नहीं, कम। बहुत कम ना। तो ये इसका इलाज है कुफले मदीना। सबर अपनी ये बंद हो जाएगी, सताने वालों के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अपनी ये चलती रहेगी और हर दरवाजे से फायर होता रहेगा। माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की बेहिसाब दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अस्सलामु व लहुम अलैकुम मा बिग़ैरि हिसाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा ये सवाल है कि मेरा 5 साल का बच्चा है जो कि मदरसतुल मदीना में पढ़ रहा है। आप उससे उसके लिए बेहिसाब हाफिज़ कुरान आलिम दीन और मैं दावत इस्लामी को देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बेहिसाब दे देंगे। बेहिसाब। 2017 की आपकी वीडियो हैदराबाद की मैं देख रहा था परसों, वो नौजवान कह रहे थे कि यार 2011 में उन्होंने आपको वादा किया था कि मैं आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा, तो रिप्ले परसों दिखा रहे थे, तो वो सुन के मैं देख रहा था, वो बड़ी हिचियों से रोए। तो आपने इसी तरह मदनी ये बना हुआ था मर्ग, तो आपने उनको कहा जो इस तरह रोएगा तो मेरे से आके मिल ले। तो आपने सिर्फ वही आए थे और प्यारे बाबा जान मैं इतना रो रहा था घर के अंदर बैठ के, तो मेरा मदनी मुन्ना कहने लगा पापा आप क्यों रो रहे? मैंने बोला मेरे पीर साहब मेरी बेसाब बख्शिश मग़फ़िरत में जब से हाजी मुश्ताक साहब जिंदा थे, मैं जब से दावत इस्लामी में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बहुत गुनहगार हूँ, आपकी नज़र करम चाहिए और बेसाब बख्शिश मग़फ़िरत। अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज के मौजू पे कि जो इस्लामी भाई हज पर किसी कुरानदाजी की वजह से चले जाते हैं, अगर उन पे हज फ़र्ज नहीं हुआ अभी, बाद में जब उनके ऊपर माल इतना आ जाता है कि वो हज फ़र्ज हो गया उन पे, तो उनका हज अदा हो जाएगा। किसी ने पैसे दे दिए, हज कर लिया, तो हज तो उसका अदा हो गया, जबकि वो हज्जुल बदल नहीं था। हज्जुल बदल हो ना तो उसका फर्ज अदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो किसी और की तरफ से कर रहा है, खर्चा भी उसने दिया हुआ है या जो भी है। हज बदल और चीज़ें, वैसे हज जो खुद कर रहा है हज, तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा। किसी ने कर्जा लिया और वक्त पे अदा ना कर सका लेकिन करना चाहता था,
तो उस पर क्या हुक्म होगा? कर्जा तो है उस पर, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अदा की सूरत फरमा दे, वहाँ क़यामत के रोज़ को सुलह की सूरत फरमा दे, तो उसके करम पर है ये। मकरूज तो रहेगा, ये नहीं कि इसको यानी ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि ये माफ़ हो गया। खैर उसकी अगर जायदाद उसने छोड़ी है, माल छोड़ा है, तो उसमें से कर्ज ख्वाह को तो अदा तो करना होगा। यानी माल छोड़कर मरने वाला कर्जों की अदायगी की वसीयत करे या ना करे, बाहर सूरत कर्ज अदा किया ही जाएगा। वसीयत करना वाजिब ना हुआ ना, कि जिस पर कर्जा है ना भी करे वसीयत, तब भी उसके माल से अदा किया जाएगा कर्जा। अगर किसी इस्लामी भाई को कोई मनसब मिले कि अगर वो नात ख्वां है या अच्छा कारी है या अच्छा बयान करता है, तो ऐसा शख्स अपने आप को दिखावे से, रियाकारी से किस तरह आसानी से बचाए? या अच्छा ख्वाब देख ले, मदीने की हाजिरी या वहाँ की कोई बुजुर्ग शख्सियत से मुलाकात जी हो जाए, है ना जी, तो अपने आप को रिया से किस तरह बचाए। जो तहज्जुद पढ़ता है उसकी बदकिस्मती तो नहीं है ना, खुशकिस्मती है, लेकिन वो बयान करेगा तो हमला तो होगा ना रिया का उस पर। तो इसी तरह कोई अच्छा ख्वाब देखे तो अगर वो बयान करे, तो अब जैसे कि बयान करेगा कोई कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मुझे आका ने सीने से लगाया, तो अब ये रिया के असबाब पैदा होंगे नहीं होंगे? ओह माशाअल्लाह, अरे बड़े खुश नसीब हो, सुभान अल्लाह भाई, हमको दुआ में याद रखना, है ना। आपका नाम हाफिज इकबाल, अच्छा हाफिज साहब माशाअल्लाह, आप तो हाफिज साहब हैं, मेरे लिए दुआ करना। तो ना आप हाफिज साहब बोलते ना रिया का हमला होता, खुद को हाफिज बोला तो आजमाइश में पड़े ना। तो यूं रिया हुब्बे जाके मामलात इस तरह भी होते हैं कि अपना खुफिया अमल लोगों पर बिला वजह बंदा जाहिर करे, बल्कि बिल वजह भी जाहिर करे तो हमला तो होता है। अब ये कि अल्लाह बचाने वाला है, तो जितना हो सके अपने अमल को बंदा छुपाए। ख्वाहिश थी कि आपसे इजहार करूं। हाँ, तो भरी अदालत में इजहार करने की ख्वाहिश थी, तो ख्वाहिश तो बंदे की शराब पीने की भी होती होगी, जुआ खेलने की भी होती होगी, तो गालियाँ निकालने की भी होती होगी, लेकिन हर ख्वाहिश ऐसी है जिसको पूरा करना जरूरी है। मैं तफहीम के लिए अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से आपने चंद बातें करके फिर सवाल इसी तरह का फरमाया। यानी मिसाल के तौर पर मैं आग में हाथ डालूं और बोलूंगा वो ये आग में हाथ डाले तो ना जले, इसकी क्या तरकीब होनी चाहिए? तो अब यूं करने में बोलूं से नहीं, जला चुके हो हाथ अपना। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। वैसे जिसको रिया का खतरा नहीं है, वो अगर अपना अमल जाहिर करता है तो हरज भी नहीं इसमें, ना कोई कि कोई अमल अपना जाहिर करे तो हम उसको रियाकार बोल दें, इसकी भी इजाजत नहीं है। वो जाने, उसका रब जाने इसकी नीयत क्या है। मैंने तो इस तरह मतलब ये कि समझाने के लिए अर्ज किया है। आप भी बोलेंगे कि मुझे आपको आप तक पहुंचाना मुश्किल होता है, तो इसी तरह वो समझाना भी मेरे लिए एक एक को मुश्किल होता है, तो उस सवाल के तनाजुर में मैंने अर्ज कर दिया। मुझ तक पहुंचाना फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं है, लिख कर भी पहुंचाना मुमकिन होता है, बंदा पहुंचा दे। अच्छा, फिर पहुंचाने से कोई फायदा है या नहीं है, वो भी पहुंचाने वाला खुद इस पर भी नीयत पर गौर कर ले कि मैं क्या चाहता हूँ, क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। कि बाज़ बातें पहुंचाना मुफीद होता है, बाज़ बातें पहुंचाना मुफीद नहीं भी होता, ये भी तो होता है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फरमाए। आमीन। तो जिन्होंने वो उम्रे शरीफ की बात की वो तशरीफ फरमा है, इस्लामी भाई आप ही थे। वो बेटे मैंने वो जो कुछ ऑपरेशन किया, माफी चाहता हूँ, मुझे यूँ लगा कि आपको शायद बुरा लगा होगा। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी है, आप माफ कर देंगे। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं। सबके सामने बोला था, मैं माफी मांग लेता हूँ। मैं अपनी इसी में आफियत मुझे लगी क्या, बुरा तो लगे, ऐसी बात तो बुरी लगे आदमी को, आप माफ फरमा दे। पापा आप माफ फरमा। मैं क्यों माफ करूं? माफ तो आपने करना है ना।
चले इनको कोई तोहफा दे दूं? हाजी अमीन के मुबारक हाथों से दस्तरखाना सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। पिछले मदनी मुज़ाकरे में मैंने आपकी एक खुसूसियत नोट की थी, वो ये कि आप पुराने इस्लामी भाइयों को याद रखते हैं, बाकायदा उनको उनके नाम से जानते हैं। ये पुराने इस्लामी भाइयों को याद रखना, इसमें फ़ायदा क्या है? और ऐसा कोई हमें भी गुर इरशाद फरमाए कि अगर कोई हमारे साथ भलाई करे, एहसान करे या हमारा साथ दे तो हम उसे हमेशा याद रखें, जब कभी सामने आए तो हम भी उसके साथ कुछ ना कुछ भलाई करने की कोशिश करें। याद रखना भी है कि कुदरती तौर पे बाज़ों के नाम याद रह जाते हैं या शक्लें याद रह जाती हैं, साथ कुछ रहे होते हैं तो अब मेरे तो अभी लाखों करोड़ों हैं, किस किस को याद रखे आदमी, तो बहुत सारे भूल भी जाता हूँ। याद रखना आमतौर पे अपने इख्तियार में होता भी कम ही है, वो आता ही अचानक है, 15-20 साल के बाद कोई अचानक आ जाए सामने तो वो याद रखा था और ये भाई याद आ जाता है तो आ जाता, नहीं आता तो नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हमें भी कुछ इरशाद फरमा दें कि हम भी जो हमारे साथ कोई एहसान करे या कोई भलाई करे तो हम भी उसे याद रखें। ये नेकी करके कोई अगर एहसान करे हम पर, हमारे साथ नेकी करे तो वाकई उसको तो याद रखना चाहिए, मगर अपने इख्तियार में वो भी नहीं होता, आदमी भूल जाता है। याद रखना चाहिए, उसकी रियायत करनी चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वही आपको लगता है कि सदमा पहुंचा है, बाजों ने भुला दिया है, आपको लगता है इसकी वजह से शायद आप कहते हैं कि मुझे नहीं बाबा, मैं तो आपकी जो खुसूसियत थी ना उसके हवाले से अर्ज कर रहा था, बाकी मेरी ही खुसूसियत थोड़ी है, जो कई ऐसे होंगे जो एक दूसरे को, जिनको आपकी उम्रें भी तो इतनी तो है यार, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा वास्ता ज्यादा पड़ा है, तो इस टाइम भाइयों को मैं बरसों से वो सारे बाजों को जानता हूँ, बाज अब भी हैं पुराने, बाज लापता हो गए हैं तो कभी कभार आ जाते हैं, तो कभी याद हो जाता है कभी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुर्शिदी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहना कि मस्जिद जो ही अल्लाह का घर है, तो जबकि अल्लाह तबारक व तआला जिहद से पाक है, बेशक पाक है, तो इसका जवाब इनायत है। मजाजन इजाफत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, इबादत की जगह है इसलिए इसको बैतुल्लाह कहते हैं। यूं देखो तो अल्लाह ताला हर घर का मालिक है, सारे घर अल्लाह के इन मानो कर दो, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमानों में सभी अल्लाह के लिए। तो यूं बैतुल्लाह को यही है इसकी अल्लाह ताला की इबादत की ये जगह है। सैयदिया तारा सैयदिया तारा बोलो सैयदिया तारा सैयदिया तारा मुर्शिदिया तारा मुर्शिदिया तारा बोलो मुर्शिदिया तारा मुर्शिदिया तारा सैयदिया तारा सैयदिया तारा सैयदिया तारा सैयदिया तारा। मैं भी देखूं मक्का मदीना, मैं भी देखूं मक्का मदीना, मैं भी देखूं मक्का मदीना, मुर्शिद तेरी आंखों से। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार